In this class, we are on exercise 2.4, which is based on laws of exponents. First law is product law. X power a, product means multiply by x power b. Then according to this law, first notice same base. Here, same base is x. So we can apply this law adding powers. So x raised to a plus b. For example, if we have 2 power 3 multiplied by 2 power 4. First notice same base. 2 multiplied by 2 now. Base is same. Now adding powers 3 plus 4. Answer is 2 raised to 7. Second law, quotient law. In this law, we have fraction, division, x power a divided by x power b. According to this law, first notice base is same. Yes, here x divided by x, base is same. So subtracting power, x raised to a minus b. For example, beta, if we have 3 power 5 divided by 3 power 2, then according to this law, base is same now. First notice base, which is 3, same base. So we will subtracting the powers. 5 minus 2. Answer is 3 power 3. Now we are on third law, which is power separation law. Power separation law is if we have product a multiplied by b divided by c. If we have product multiplication or division and raised to single power m, any power, then spread power on each. It means a power m, b power m divided by c power m. But here danger point is if we have a plus b raised to square और आप पावर स्प्रेड कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल. माइनस अगर होगा तो भी ये काम आपने नहीं करना. ये काम हमेशा होता है प्रोडक्ट में, ये काम होता है डिवीजन में. देखिए अगर ऐसे हो जाए बेटा a डिवाइडेड बाय b होल पावर 5, a रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर 5. बस प्लस माइनस पर नहीं होगा, किस पावर पर होगा? मल्टीप्लिकेशन पर और डिवीजन पर. यू विल स्प्रेड पावर ऑन ईच. ये जो की वर्ड्स हैं, जो की पॉइंट्स है बेटा, आपने ये मेमोराइज करने हैं. ये हेडिंग्स प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, पावर सेपरेशन लॉ और जो इसमें की वर्ड्स है वो अच्छे से मेमोराइज कर लें आप. तो बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर. बेटा आपने कुछ कॉपी नहीं करना, मैं अभी आपको अलाउ करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. नाउ वी आर ऑन लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर. इन दिस लॉ वी हैव base x raised to power a and then whole power b. In that case, multiply the powers, follow the keywords. Multiply the powers means a multiply by b. For example, beta, if we have 5 power 2 power 3, इतना होगा तो बेटा क्या करोगे? 5 पावर बन जाएगी 2 3s are 6, multiplying power, but raised to another power 4. Here 5 is base, and it contains 3 powers 2 3 4. So first write the base 5 and multiply the powers. Multiply the powers means 2 by
3/4, 5 raised to 2, 3 is 6, 4 is 24. बेटा ये आपका आंसर होगा। फिफ्थ लॉ, नेगेटिव पावर लॉ। फिफ्थ लॉ इज नेगेटिव पावर लॉ। ओके बेटा, नेगेटिव पावर लॉ में बेटा हम क्या करते हैं, टेक रेसिप्रोकल लेते हैं। मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट विल बिकम पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये लॉ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तवज्जो फरमाइए बेटा। देखो एक फ्रैक्शन होगा a डिवाइडेड बाय b, x डिवाइडेड बाय y, इस तरह से फ्रैक्शन होगा और उस पर पावर क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव पावर मींस -n। इस पर भी पावर होगी कुछ भी, -m। पावर कुछ भी एज्यूम कर लो आप। तो देखो हम लॉ कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, a डिवाइडेड बाय b विल बिकम b डिवाइडेड बाय a। नेगेटिव पावर लॉ, जब भी होल पावर नेगेटिव आ जाए तो आपने क्या करना है, टेक रेसिप्रोकल, a over b will become b over a, means डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा बेटा। और मजीद क्या होगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव पावर will become positive exponent, नेगेटिव एक्सपोनेंट will become positive exponent। -n को आप n लिखोगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, x over y over x, -m को बेटा आप +m लिखोगे। अब आप इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए बेटा। इफ वी हैव 2/3 होल पावर कर लेते हैं हम 5, देखो पावर होगी -5, तो अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे, जब भी नेगेटिव पावर आ जाए ना तो नेगेटिव बिल्कुल अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए मुजिर है नेगेटिव। वी कैन मेक इट पॉजिटिव बाय moving the fraction down। 2/3 will become 3/2, -5 will become 5। to take reciprocal and convert a negative exponent into positive exponent। Now we are on exercise 2.4। Now we are on exercise 2.4, and in this exercise, beta, we will use power separation law। we will apply power separation law बेटा। तो लॉ क्या था, पावर सेपरेशन लॉ। और रिवाइज करवा दूं मैं, a डिवाइडेड बाय b, x डिवाइडेड बाय y, कोई भी दो चीजें डिवाइड हो रही हूं बेटा और ऊपर कोई पावर आ जाए तो पावर सेपरेशन में स्प्रेड पावर ऑन ईच, a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m। ठीक है बेटा, तो पहले तो देखिए लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। बिल्कुल ऐसे ही, अगर यहाँ पर c भी होता ना बेटा तो c पर भी पावर आ जाती। तो देखिए जरा क्वेश्चन देखिए आप, और मजीद इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे बेटा a डिवाइडेड बाय b whole power -m। if we have fraction and it contains negative power, then it will become positive, a over b will become b over a। ठीक है बेटा, तो अब आप क्वेश्चंस देखिए जरा। सबसे पहले आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैं ऐसा करता हूं, बढ़ा देता हूं, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, first simplify the base 3/12, 3 1s
3 4 the. Now it will become 1 by 4 raised to power 6 बेटा। तो अब देखो क्या होगा, 1 raised to power 6 divided by 4 power 6। अब बेटा 1 पावर 6 होगा 1 और 4 पावर 6 का मतलब क्या है, 4 पावर 6 मीन्स बेटा देखिए 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाइएगा, आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आ जाए वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। आप चाहो यहाँ तक सॉल्व करना, आपकी मर्जी है, और अगर आप ये ना करना चाहो तो आप डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 पावर 6 भी लिख सकते हो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा बेटा, देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, नेगेटिव 12 बाय 5 रेज टू पावर 5। देखिए सॉल्व कैसे किया जाए। 12 और 5 कैंसिल आउट नहीं होते, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 3 और 12 तो मैंने कैंसिलेशन कर दी थी बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा, स्प्रेड पावर ऑन ईच, नेगेटिव रेज टू पावर 5 नेगेटिव, नेगेटिव रेज टू ऑड पावर बेटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव रेज टू इवन पावर बेटा प्लस होता है। कैसे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो नेगेटिव रेज टू ऑड पावर माइनस, 12 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 5। बेटा ये आपका आंसर है। नेक्स्ट स्टेप करना ऑप्शनल है कि आप सिंपल कैलकुलेटर में 12 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, 12 बाय 12 बाय 12 बाय 12 करें और नीचे 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं और जो नंबर्स आए वो लिखते हैं। ये ऑप्शनल है, मैं कहूंगा कि आप यहीं तक करो, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, a divided by b raised to power 6। तो बेटा क्या करोगे आप, स्प्रेड पावर ऑन ईच, a पावर 6 b पावर 6, दैट्स योर आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, l over m बेटा रुमेसा रईस चैट बॉक्स में आइए, रेज टू पावर -3। अब देखिए हम यहाँ पर लॉ अप्लाई करेंगे, एल और एम है ना, रेज टू नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर के साथ मैं क्या करूंगा, नेगेटिव पावर को हमेशा हमेशा पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव पावर विल बिकम पॉजिटिव if section is reciprocal, L over M will become M over L। इस तरह से पावर का साइन बदल जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में m पावर 3 डिवाइडेड बाय l पावर 3, होल पावर जब भी होगी फ्रैक्शन पर तो वी विल स्प्रेड पावर ऑन ईच। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आप देखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। बेटा जिसके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही उसकी तरफ से प्रॉब्लम है, मेरी क्लास तो बिल्कुल सही जा रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, 8 a square b divided by
3cd raised to power -2। अच्छा जी बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, होल पावर -2 है। पहले तो ब्रैकेट को अंदर से देखो, 8 और 3 कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो अब आप वर्किंग करो बेटा। ए स्क्वायर बी और सी डी, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, आप वर्किंग करें बेटा। रेज टू पावर -2, नेगेटिव पावर विल बिकम पॉजिटिव पावर, तो -2 को आपने ऊपर का लिख दिया +2। अब इसके लिए बेटा क्या करना होता है हमें, जब हम ये काम करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो फ्रैक्शन को चेंज करना होता है। ये 3cd ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल, 8a स्क्वायर b रेसिप्रोकल। आफ्टर दैट वी विल स्प्रेड पावर ऑन ईच। अब देखो पावर कैसे आएगी, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, 8 रेज टू पावर 2 a स्क्वायर स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब देखिए बेटा, इससे आगे मैं क्या करने जा रहा हूं, इक्वल्स टू, अभी सिर्फ देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, सारे क्वेश्चन का एक सिंगल स्क्रीनशॉट मिलेगा आपको। 3 स्क्वायर इज 9, c स्क्वायर d स्क्वायर 8 स्क्वायर इज 64, or 2 to the 4 according to law of power of a power, multiply the powers 2 to the 4 and b power 2, that will be your answer beta। अब आप एक काम कीजिए, मैं इसे मिनिमाइज कर दूं, आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। हरी अप। Now we are on question number 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, -3x³ y square divided by 2t raised to power 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, नेगेटिव रेज टू इवन पावर प्लस 3 पावर 4 x पावर 4 रेज टू x पावर 3 रेज टू पावर 4 y स्क्वायर रेज टू पावर 4, spread power on each बेटा, 2 पावर 4 u पावर 4 and t पावर 4। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, 3 पावर 4 होगा 81, 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 पावर 4 इज 16, u पावर 4 t पावर 4। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 11 और 12 एज इट इज होंगे बेटा। मैं यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 11 और 12। बेटा ये ट्राई कर लीजिएगा, बल्कि ना मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 10 और 12 खुद करवा रहा हूं, बाकी एज इट इज होंगे बेटा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। 12 मैं खुद करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 देखिए, -30 x पावर 10 y पावर 8 होल स्क्वायर
एक मिनट, मैं शुरू से क्वेश्चन लिखूं बेटा। ये है -30 x पावर 10 y पावर 8 डिवाइडेड बाय -5 x क्यूब y स्क्वायर रेज टू पावर 2। बेटा इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट सिंप्लीफाई द बेस। फोकस करें, मैं व्यू बढ़ा देता हूँ बेटा ताकि आपको वाज़ेह तौर पर सब नजर आए। देखो पहले अगर आप इस क्वेश्चन में देखो ना तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है कोई भी लॉ अप्लाई करने से पहले। तवज्जो फरमाइए बेटा, माइनस और माइनस होता है प्लस। कैसे? माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, या माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस। अब 30 डिवाइडेड बाय 5 कैन वी सिंप्लीफाई? यस, पहले ये काम कर लिया करो आप। 6 और अब देखो x पावर 10 डिवाइडेड बाय x पावर 3, x पावर 10 डिवाइडेड बाय x पावर 3 क्वोशिएंट लॉ। x रेज टू क्या बन जाएगा बेटा? x रेज टू बन जाएगा 10 माइनस 3 पर और y पर भी होगा बेटा। अब आपने क्या करना है, 6x पावर 7 y पावर 6 और फर्दर 6 स्क्वायर x पावर 7 रेज टू पावर 2 y पावर 6 स्क्वायर होल पावर को स्प्रेड करने के बाद अब आप करोगे क्या, मैं यहां दोबारा लिख दूं, ये है 2, 6 स्क्वायर इज 36, 7 2 14 और 12। अब बेटा अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दो क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हैं और अभी आप सब लोग वापस आ रहे हो, मैं मजीद क्लास कंटिन्यू करूंगा। एक स्क्रीनशॉट ले लिया।